Start. Hello everyone. Welcome back to Learning Fundamentals of English Grammar. This is Dr. R.S. Maurya. In previous lectures, we had 3 days discussion on the pronoun. Last day we discussed relative pronoun. And we have left some important points. So today is concluding lecture. So I just pick up the points which were not discussed. So let us see. The first I see it emphatic. It from it. Yeah, this it I told you. It works as an emphatic. Emphatic. For example, it was I who did it. It was I who did it. It was I who did it. Who did it? It was I. So emphasis is on I. So we begin with it. That shows emphasis on the sentence. It was I. It was I. It was you who began the quarrel. It was you. It was you who began the quarrel. It is I, it is you. So, it was I, it was you. It is also, but not plural. But not plural. So, it is I, it is emphatic. And then, one thing that I also want to tell you that it is as impersonal pronoun. I can be treated as impersonal pronoun. Impersonal. When it is impersonal pronoun, it tells whether, for example, it is fine, it is winter, it is 10 o'clock, it rains, right? Impersonal pronoun. It rains, it snows, it rains. So that works. Or ये क्या? Rain is raining. That is not correct. Rain is raining or water is raining. It's not. It rains. बारिश होती है तो it rains. बर्फ पड़ता है तो it snows. It snows. बर्फ पड़ता है तो it snows. बर्फ पड़ता है. It thunders. गरजता है. It thunders. गरजता है. तो इसको बोलते हैं impersonal pronoun. Impersonal pronoun. I has a special place. So it rains. And it also denotes weather and all these things. I told it is fine. It is winter. It is 10 o'clock. All this. So now we move on to another pronoun. One.
this is also important. One. तो for example, if one is subject, is possessive will be ones. ये इसकी गलती बहुत ज़्यादा होती है. Lot of mistake is committed. तो a man should take care of his health. A man should take care of his health. अगर आप ऐसे लिखें, one should take care of one's health. तो इसका पजेसिव जो है वंस होता है. अगर यहाँ वन प्रोनाउन है, शुरू हुआ है, तो इसका पजेसिव क्या होता है? वंस होता है. एपोस्ट्रोफी यस, वंस. तो इसका मतलब होगा वन मीन्स सिंगल, सिंगुलर. जैसे इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ए मैन शुड टेक केयर ऑफ हिज हेल्थ. ए मैन शुड टेक केयर ऑफ हिज हेल्थ. जैसे इसको इसके जगह पर ए मैन लिख सकते हो. अब यहाँ पर ए मैन है तो यहाँ हो जाएगा हिज. तो यहाँ वन है तो ये हो गया वंस. तो इसको आप ध्यान दीजिएगा. अच्छा, और वन का ऐसे ही प्रयोग होता है. जैसे यू हैव many pens. You have many pens. You have many pens. आपके पास बहुत कलम है. I want one. I want one. वन मतलब होता है एक, उसमें से एक. तो वन का प्रयोग ऐसे ही होता है. वन का प्रयोग ऐसे भी होता है. और इसके बहुत और भी तरीके हैं. जैसे वन हार्डली नोज. ये इंडिफिनिट प्रोनाउन आता है. वन हार्डली नोज व्हाट टू डू. वन हार्डली नोज. वन हार्डली नोज का मतलब क्या हुआ? किसी को मुश्किल से पता है. किसी को मुश्किल से पता है. वन हार्डली नोज मतलब इट इज वेरी डिफिकल्ट टू नो फॉर वन. किसी को वन हार्डली नोज मतलब होता है किसी को मुश्किल से ये पता है. मुश्किल से पता है. वन हार्डली नोज व्हाट विल हैपन नेक्स्ट. व्हाट विल हैपन नेक्स्ट. वन हार्डली नोज व्हाट विल हैपन नेक्स्ट. अब इसको यहाँ से लिख सकते हैं. व्हाट विल हैपन वन हार्डली नोज व्हाट विल हैपन नेक्स्ट. तो इस तरह का स्ट्रक्चर भी वन के साथ होता है. और हम देखते हैं
Yes, one must not boast of one's own success. That is also like this. And the one, he gained a prize last year, but he did not gain one this year. One मतलब एक या वही, the same. There were 6 lazy boys and 4 industrious ones. हाँ, ये वन जब हम आप सिंगुलर में यूज करते हैं तो इसका प्लूरल वंस होता है. देखिए, वन का प्लूरल हो गया वंस. ये वंस ये प्लूरल हुआ. और दूसरा जो हमने वंस बताया ये पजेसिव हुआ. ये जो है इसको बोलते हैं पजेसिव. संबंध बदलाता है, दोनों में अंतर समझिए. वन का प्लूरल जो है वंस होता है और पजेसिव वंस होता है, तो उसमें एपॉस्ट्रॉफी यस लगा रहता है. यहाँ पर यस लगा होता है, एपॉस्ट्रॉफी यस लगा होता है. तो अब एक देखते हैं नन. नन का मतलब होता है एनीवन. नन एनीवन. और ये सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है. सिंगुलर और प्लूरल कुछ भी हो सकता है. जैसे उदाहरण देखिए, यू हैव बुक बट आई हैव नन. आपके पास किताब है लेकिन मेरे पास कोई किताब नहीं है. तो नन मतलब होता है नॉट एनी. अब जैसे देखिए, ब्रिंग मी सम पेन्स. कुछ मेरे लिए कलम लाओ. आई हैव नन. मेरे पास कोई कलम नहीं. मतलब आप इसको प्लूरल में भी आप यूज़ कर सकते हो. आई हैव नन. तो नन हैव गॉन अवे. नन हैव गॉन अवे. तो नन हैव गॉन अवे का मतलब, अब यहाँ हैव लगा है तो इसको हम प्लूरल में भी यूज़ कर सकते हैं. तो ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है. और नन का मतलब होता है नहीं, नॉट एनी. और अब आते हैं रिलेटिव. बता रहे थे रिलेटिव क्लॉज. तो एक रिस्ट्रिक्टेड होता है, रिस्ट्रिक्टेड प्रोनाउन. देखिए क्या होता है. द मैन हु लिव्ड देयर डाइड यस्टरडे. द मैन हु लिव्ड हियर the man who lived here died yesterday. तो इसमें जो क्लास है हु लिव्ड हियर, जो मैन की को रिफ़र करता है, तो ये रिस्ट्रिक्ट भी करता है. ये जो है रिलेटिव क्लास है जो रिस्ट्रिक्ट करता है. किसको रिस्ट्रिक्ट करता है? द मैन को. द मैन हु लिव्ड देयर. हु लिव्ड देयर जो है एक क्लास है जो मैन को रिस्ट्रिक्ट करता है. तो इसको बोलते हैं रिस्ट्रिक्टिव रिलेटिव क्लास. तो द मैन हु लिव्ड देयर. और दूसरा कंटिन्यूएशन भी करता है, रिस्ट्रिक्ट भी करता है और कंटिन्यूएशन भी करता है. जैसे आई फाउंड माई फ्रेंड हु रिकॉग्नाइज्ड मी एट वंस. आई फाउंड माई फ्रेंड हु रिकॉग्नाइज्ड मी.
हु रिकॉग्नाइज मी का मतलब एंड हु रिकॉग्नाइज मी, और जिसने हमको पहचाना। पहले में क्या होता है, रिस्ट्रिक्ट करता है, लेकिन दूसरे में रिस्ट्रिक्ट नहीं करता। और हु रिकॉग्नाइज, आई फाउंड माई फ्रेंड, मैं अपना दोस्त को पाया जिसने और उसने मुझे पहचान लिया। तो ये कंटिन्यू करता है, इसलिए इसको बोलते हैं कंटिन्यूएशन। तो ये जो है प्रोनाउन, ये रिलेटिव क्लॉज है। ये रिलेटिव प्रोनाउन जो कंटिन्यू करता है, और एक रिलेटिव होता है जो रिस्ट्रिक्ट करता है। द मैन हु लिव्ड देयर डाइड स्टरडे। द मैन हु लिव्ड देयर, ये मैन को रिस्ट्रिक्ट करता है। डाइड स्टरडे, हु लिव्ड देयर। और दूसरे वाले में हु का मतलब और जो, जैसे आई फाउंड माई फ्रेंड, मैंने अपने दोस्त को पाया। हु रिकॉग्नाइज मी, हु का मतलब यहाँ हो गया और जो, और जिसने हमें पहचाना। तो ये कंटिन्यूएशन में है। और पहला वाला जो है रिस्ट्रिक्ट करता है, रिस्ट्रिक्शन में है। तो ये आपको एक चीज़ और छूट गया था। और एक और चीज़ छूट गया है कि कुछ प्रोनाउन को हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब होता है जो सिंगुलर होता है। जैसे ईच, आइदर, नाइदर, ये सब जो है ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। और ये जो है ईच का मतलब होता है वन एट ए टाइम। ईच का मतलब होता है वन एट ए टाइम, किसी समय में एक ईच का मतलब होता है। तो इसलिए ये सिंगुलर होता है, इसके साथ सिंगुलर वर्ब का भी प्रयोग होता है। तो आप देखें, ईच ऑफ गर्ल्स गेट्स ए प्राइज। ईच ऑफ गर्ल गेट्स प्राइज। Each of girls gets prize, gets a prize। तो each of girls लड़कियों में, तो यहाँ एक का बोध होता है, इसलिए इसका वर्ब जो है सिंगुलर होगा। each of girls। और ऐसे भी होता है each girl, each के girl, each girl wears a cap, wears a cap। तो यहाँ भी ये सिंगुलर हुआ each। तो each जो है सिंगुलर होता है, each and each। अच्छा, नाइदर ऑफ, आइदर और नाइदर भी सिंगुलर होता है। और ये सिंगुलर, इसके साथ सिंगुलर वर्ब लगता है। तो आइदर, नाइदर, इसका जो उच्चारण दो होता है। जैसे ब्रिटिश इंग्लिश में आइदर बोला जाता है, आइदर, नाइदर। अब अमेरिकन में ईदर, नीदर बोला जाता है, ईदर, नीदर। तो डज नॉट मेक मच डिफरेंस, आप कुछ भी प्रोनाउंस कर सकते हैं। तो आइदर ऑफ देम इज रॉन्ग। आइदर ऑफ देम, आइदर आपकी बात थी, आइदर ऑफ देम इज रॉन्ग। आइदर ऑफ देम इज रॉन्ग। इसमें भी ये सिंगुलर का ही प्रयोग होता है। आइदर ऑफ देम इज रॉन्ग, आइदर ऑफ देम इज रॉन्ग। नाइदर ऑफ द एक्यूजेशन, एक्यूजेशन मतलब एक्यूजेशन मतलब आरोप। नाइदर ऑफ द एक्यूजेशंस इज ट्रू, इनमें से कोई आरोप सही नहीं है। तो नाइदर ऑफ द एक्यूजेशन सिंगुलर होगा।
तो इस तरह से देखते हैं ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस का जो सिंगुलर में प्रयोग होते हैं। अब हम देखते हैं दूसरी चीज़ कि रिलेटिव प्रोनाउन जो अंडरस्टूड होता है, अंडरस्टूड का मतलब कि इसमें दिखाई नहीं पड़ेगा कि इसमें कुछ लगा है। तो अंडरस्टूड जो प्रोनाउन होते हैं इस तरह से देखते हैं। बहुत से आपने देखा होगा कि लिटरेचर के स्टूडेंट्स जो है देखे होंगे बहुत सारे, जैसे आई एम मोनार्क ऑफ ऑल दैट आई सर्वे, ड्राइडन का है, मैकफ्लेक्टो का। आई एम मोनार्क ऑफ ऑल दैट आई सर्वे। मोनार्क मतलब होता है राजा। आई एम मोनार्क किंग ऑफ, आई एम मोनार्क ऑफ ऑल आई सर्वे, मोनार्क ऑफ ऑल आई सर्वे। अब इसमें रिलेटिव प्रोनाउन है लेकिन ये गायब है, तो आप यहाँ से खोजिए कहाँ पर है। आई एम मोनार्क ऑफ ऑल दैट, आई एम मोनार्क ऑफ ऑल, यहाँ पर छुटा हुआ है दैट आई सर्वे। ये अंडरस्टूड होता है, कभी लगता है, और जो अंडरस्टूड होता है वो नहीं लगता है, लोग नहीं लगाते हैं, लेकिन फिर भी इट इज अंडरस्टूड कि इसमें ये होता है। और भी बहुत से हैं। दिस इज़ द हाउस वी लिव इन, दिस इज़ द हाउस वी लिव इन, इसमें भी छुटा है दैट आई या वी लिव इन। द गर्ल यू टीच इज़ वेरी क्लेवर, द गर्ल whom यू टीच इज़ वेरी क्लेवर, तो whom यहाँ छुटा हुआ। हैव यू सीन द बॉय आई सेंट टू यू, हैव यू सीन द बॉय whom छुटा हुआ, whom आई सेंट टू यू, तो इसमें कुछ छुटा हुआ होता है। इसके बाद है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन जैसे हु स्पोक, तो हु, ऑफ whom डिड ही स्पीक, एक्यूजेटिव केस में है, ऑफ whom डिड ही स्पीक, व्हाट डिड ही से, हु इज ही, व्हाट इज ही, which is he, तो इसी what is he, who is he, तो ये इसको बोलते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इसी तरह से एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन भी होता है, जैसे व्हाट अ फुलिश मैन इज ही, व्हाट फुलिश मैन इज ही, व्हाट अ फुलिश मैन इज ही, व्हाट फॉली, तो इस तरह से आपको ये मिलेगा प्रोनाउन। तो इसमें वी डिस्कस डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोनाउंस एंड हाउ टू यूज एंड देयर मीनिंग, कंटेंट। सो दिस वाज द कंक्लूडिंग chapter day 4. I hope you enjoy. So please do subscribe if you think that it is to be subscribed for the benefit of your friends and others who is interested in learning fundamentals of English grammar. So that's all for today. Thank you very much.